Hello everyone, welcome to the classroom. And as you know that you can see the topic on your screen that today we are going to learn about the effective assessment techniques, right? तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से इफेक्टिव असेसमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करूं, सो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर दैट दिस वीडियो इज फॉर द टीचर्स ओनली। ये वीडियो टीचर्स के लिए बनाई जा रही है and this video is really going to help you all the teachers to do assessment in your school, in your class, and wherever you are teaching, either in a private tuition classes also, right? So the very first question comes here, that what is assessment? Assessment होता क्या है ना? ये एक जो है ना टीचर्स की जिंदगी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम होता है, and the teachers have to do it. So what is assessment? Let us know about it. Assessment is the ongoing process of gathering evidence. This evidence helps to analyze and reflect, thus helping to improve future student learning. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Assessment is an ongoing process. ये एक हमेशा जारी रहने वाला प्रोसेस है. It never stops. ये हमेशा चलते रहता है. लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है? व्हाट इज दिस प्रोसेस नाउ ना? विच प्रोसेस इज दिस? इट्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एविडेंस. हम एविडेंस को गैदर करते हैं, जमा करते हैं. बट व्हाट काइंड्स ऑफ एविडेंस डू वी गैदर, है ना? सो वी गैदर द एविडेंसेस which help us to analyze and reflect the improvement in our student, है ना? हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, whatever we teach students in our classrooms, so we need to do assessment of their improvement, their development, right? So assessment यही होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, how much they have learned. We have to take point of that. We have to analyze their improvement. हमें उसके improvement के बारे में जानना होता है. तो यही assessment होता है. लेकिन ये क्यों, why it is important, है ना? आप देख सकते हैं एक टीचर, she is sitting with 4 children and she is teaching something. कुछ सिखा रही है वो. This is related to art and craft. But what she is teaching, तो क्या पढ़ाई है इस पे ध्यान मत दीजिए आप. But these two questions are very important. एक स्टूडेंट सोचता है what I am learning, है ना? What am I learning? मैं क्या पढ़ रहा हूँ ना? Student, this question is regarding the student's perspective. What am I learning? And a teacher should be aware of that, what she is teaching. And is my teaching bringing the desired learning? इन दो सवालों के जवाब लेना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है आज, बहुत जरूरी है ना? जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, है ना, क्या ये बच्चों को समझ आ रहा है? आर दे लर्निंग ऑल? एंड स्टूडेंट को भी ये मालूम होना चाहिए कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है ना? एंड व्हाट आई हैव लर्न. तो ये क्या होता है? दिस इज द ड्यूअल नेचर ऑफ असेसमेंट. ये असेसमेंट के, it's a dual nature of assessment. So here we do assessment of the students, what they have learned, and the teachers have to do self assessment, that what they have taught and how they have taught. कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, है ना? एंड जो उन्होंने पढ़ाया, क्या वो बच्चों को समझ में आया? These questions are very important that a teacher needs to ask himself or herself. बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स को ये सवाल अपने आप से पूछना. एंड वन मोर क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन. डज योर असेसमेंट हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस? देखिए, अभी आप जैसे भी असेसमेंट करते हो बच्चों के, तो उस असेसमेंट प्रोसेस में क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ पाते हो, है ना? सो वेयर एम आई, वेयर डू आई नीड टू बी, एंड हाउ डू आई गेट देयर? मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? मुझे क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं
कि असेसमेंट करते समय आप इन सवालात के यानी इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली डियर टीचर्स, असेसमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। जनरल एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो इन जनरल एजुकेशन assessment are of two types. Number one, summative assessment and number two, formative assessment. आपको पहले तो ये समझना होगा कि what is summative assessment and what is formative assessment. You can see a ladder and a child climbing a ladder, यानी एक सीढ़ी है जिस पर एक बच्चा चढ़ रहा है. So आप देख सकते हैं कि there are 4 formative assessment, और इन 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट को पार करने के बाद बच्चा जा रहा है समेटिव असेसमेंट पर. यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको देखकर तो ये पता चलता है कि दीज आर कंडक्टेड टाइमली, है ना, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इसको इसको कंडक्ट किया जाता है. एंड देयर इज वन समेटिव असेसमेंट व्हिच विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर. चलिए ठीक है, हम इसको और बेहतर अंदाज में डिटेल में जानते हैं. व्हाट इज समेटिव असेसमेंट? सो द समेटिव असेसमेंट हैपेंस आफ्टर द लर्निंग टेक्स प्लेस. यानी जब आपका पढ़ाना पूरा हो जाए, एट दी एट ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर, यानी कि जिसे हम फर्स्ट सेमेस्टर भी कह सकते हैं, है ना, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, राइट. तो दीज टू टाइप्स ऑफ एग्जाम्स आर व्हाट, दीज आर दी समेटिव असेसमेंट्स, जहां पर आप बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, है ना. एंड हियर अ टीचर गैदर द इंफॉर्मेशन, है ना, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज यूजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू मार्क्स और ग्रेड्स. So first term, second term, these are what, these are the summative assessments. And here a teacher gather information about what, about the knowledge of the students, के students ने कितना सीखा है ना. और एक टीचर टिपिकली करता क्या है यहाँ पर एक टीचर, a teacher transform that information into marks or grades. टीचर उसको मार्क्स और ग्रेड्स में कन्वर्ट करता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है. यानी बच्चों का जो डेवलपमेंट है हम मार्क्स और ग्रेड्स में देखते हैं, है ना. आपने देखा होगा ए ग्रेड A+, B+, है ना, 90%, 90 अबो परसेंट, 80%, 80 अबो परसेंट, ऐसे परसेंटाइल्स होते हैं, परसेंटेजेस होते हैं, मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं. एंड वी गैदर इंफॉर्मेशन, वी मीन्स टीचर्स, हम टीचर्स उसको गैदर करते हैं और उसको हम ट्रांसफर करते हैं, है ना. लुक्स बैक ऑन पास्ट लर्निंग. लेकिन चिल्ड्रन, टीचर्स, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. वो इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि हमें कंपेयर करना होता है. वी कंपेयर दी the result and the performance of the students with their past. यानी पास्ट में वो कैसे थे, एक साल पहले या 6 months बिफोर, वो स्टूडेंट्स का लेवल क्या था, व्हाट वाज देयर लर्निंग लेवल, है ना. उनका लेवल हमें पता होना चाहिए कि हमने एक्चुअली, जब हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग प्रोसेस किसी क्लास में किसी स्टूडेंट के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू असेसमेंट, वी हैव टू चेक देयर लेवल, वी हैव टू नोट इट डाउन, वी हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो. हमें एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, हमें उसका एक रिकॉर्ड रखना होता है. एंड आफ्टर अ समेटिव असेसमेंट हमें उससे कंपेयर करना होता है कि भाई हाँ, before 6 months the student was at this level and after 6 months the student is now at this level, है ना. And one more comparison we do in the class, and that is what, we compare the result of students with others. हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि यार हाँ, these many child have done better and these many students have done good, okay, है ना, like that. And assessment का टाइप कुछ भी हो सकता है ना. It can be MCQ, it can be short answers, long answers, oral examinations can also be conducted, है ना, right. So summative assessment, शायद आप समझ ही होंगे, summative assessment is a type of assessment which teachers conduct at after a particular time period like 6 months or 1 year. ठीक है, चलिए अब ये आपको समझ आएगा ना कि हम बच्चों से काफी कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये समझना होता है कि बच्चों को हमने जो पढ़ाया क्या उन्होंने सीखा, है ना. सो देयर इज हाई डिपेंडेंस ऑन समेटिव असेसमेंट. कार्टून है, देखिए. आई हैव टॉट स्नूपी टू विजल. टीचर कह रहा है कि मैंने स्नूपी को विजल सिखाया है, उसे सीटी बजाना सिखाया, राइट. बट आई कांट हियर हिम विजल. दूसरा बोल रहा है कि मैं तो सुन नहीं रहा हूं,
उसे तो वो शायद वो नहीं बजा रही है। तो टीचर फिर कहता है कि आई सेड दैट आई हैड टॉट हिम, नॉट दैट ही हैड लर्न, मैंने उसे सिखाया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसने सीख लिया। यही तो फर्क होता है असेसमेंट में और सिखाने में। हम समझते क्या है टीचर्स के, अगर हमने एक बार पढ़ा दिया बच्चों को तो हम ये समझते हैं कि बच्चों ने सीख लिया। नहीं, क्या बच्चों ने सीखा, इसको जानने के लिए हमें असेसमेंट करना होता है, और हमारी हाई डिपेंडेंसी होती है, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन समेटिव असेसमेंट टू नो दी व्हाट, टू नो दी लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं हम दूसरे असेसमेंट पे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो गिवन बिफोर एंड ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, तो यू कैन कंडक्ट सच काइंड्स ऑफ असेसमेंट इन योर डेली एक्टिविटीज। डेली आप इसको कर सकते हो, है ना। क्लास से पहले भी आप कुछ असेसमेंट दे सकते हो, या क्लास के बाद भी आप कोई असेसमेंट दे सकते हो, है ना। और टीचिंग प्रोसेस यानी आप जब आप पढ़ा रहे हो तब भी आप बच्चों को असेस कर सकते हो, या पढ़ाने के बाद भी आप बच्चों को असेस कर सकते हो। एंड इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर एंड यूज्ड एज अ गाइड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो होता है ना, लाइक अ डायग्नोस्टिक, कभी आप डॉक्टर के पास गए हो ना। हाँ, हम सब जाते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल कंसल्ट विद द डॉक्टर व्हेन वी फील इल। तो क्या करता है डॉक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्टर डायग्नोस, है ना, ही डू डायग्नोसिस। वो पूछता है कि भाई हाँ चलो, मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, है ना। एंड देन ही चेक योर टेम्परेचर, एंड देन द डॉक्टर चेक योर ब्लड प्रेशर, है ना। एंड सम ऑफ द टेस्ट आर डन बाय द डॉक्टर। तो वो कुछ टेस्ट करता है, कुछ आपको चेक करता है, एक्चुअली इट्स कॉल्ड डायग्नोसिस, है ना। ही डायग्नोज, डायग्नोज करने के बाद क्या करता है वो, चलो ठीक है भाई, आपको यू हैव अ फीवर, देन द डॉक्टर गिव यू प्रिस्क्रिप्शन, राइट, फीवर का, है ना। तो भाई फीवर, इट्स अ ये एक छोटी सी बीमारी है, एंड दैट कैन बी क्योर इन कपल ऑफ डेज और इन फ्यू डेज। ठीक है, एट मोस्ट एक वीक में तो कम हो ही जाएगा। तो चिल्ड्रन, टीचर्स आपको एक बात समझनी होगी कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट हम करते हैं, ये इसका मेन पर्पस क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस है कि हम बच्चों के उन प्रॉब्लम्स को जाने और पहचाने जो अटमोस्ट प्रायोरिटी पे हमको उसे सॉल्व करना होता है। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, कुछ बच्चों के बहुत माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं रीडिंग राइटिंग में, तो हम उसे ना कैच कर सकते हैं, हम उसे मालूम कर सकते हैं। आफ्टर नोइंग दीज प्रॉब्लम्स वी कैन सेट द गोल्स के यार हाँ, आने वाले एक हफ्ते में, इन कमिंग 1 वीक वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। हमें एक हफ्ते में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। तो ऐसे शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं, यानी जिसे हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मोस्टली 1 वीक, 15 डेज मोस्टली, हम इसे लेकर चल सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें जानना पड़ेगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स, राइट। And once we identify their problems, we need to set the goals, we need to set the strategy by following what we are going to solve these. समझ में आ रही है आपकी बात? And this provides teachers with information they need to create appropriate work for groups of learners or individual students. हाँ, दो तरह से काम किया जा सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग बच्चों को इंडिविजुअली भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार हाँ, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर रोल नंबर 16 हैज प्रॉब्लम इन रीडिंग, दिस दिस वर्ड्स एंड दिस टाइप्स ऑफ, बोल सकते हैं कि भाई स्टूडेंट नंबर 16 को कुछ ये प्रॉब्लम है छोटे छोटे, और वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। इंडिविजुअली भी हम स्टूडेंट्स पर काम कर सकते हैं, एंड वी कैन वर्क इन अ ग्रुप ऑल्सो, है ना, बिकॉज वी कैन फाइंड आउट सम कॉमन प्रॉब्लम्स। हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स में, कि यार हाँ, दिस क्लास 9th बी हैज दिस कॉमन प्रॉब्लम्स, ये 9th बी के ये कॉमन प्रॉब्लम्स है सारे बच्चों में, चलिए तो पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन याद रखिए एक बात, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम उन प्रॉब्लम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व करते हैं जो उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? द प्रॉब्लम्स विच मे अफेक्ट द continuous development of the students need to be solved first.
जो बच्चे के कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर सॉल्व करना होता है। एंड यस, नॉट टिपिकली यूज टू असाइन द ग्रेड्स। यहाँ पर हम ग्रेड्स असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसको मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग। वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू द ग्रेड्स, राइट। हाँ, रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है एंड इट हैज वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है, कभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में कैसे प्रॉब्लम्स को लिए ले सकते हैं और इसको कौन से फॉर्मेट में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ ले सकते हैं अभी के ब्रीफ रिटर्न समरी ऑफ लेसन, लेक्चर, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, क्विज एक्सेट्रा। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसे समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट में सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे किया जा सकता है ना। चलिए जानते हैं 5 प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, राइट। नंबर 1, शेयरिंग द लर्निंग इंटेंशन। हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि किस इंटेंशन से हम उन्हें ये पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ टीचर टू टीच दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्यों पढ़ा रहे हैं, ये लर्निंग इंटेंशन हमें भी पता होना चाहिए और ये बच्चों को भी क्लियर होना चाहिए कि यार टीचर का इंटेंशन ये है और टीचर चाहते हैं कि हमारी ये कमजोरी दूर हो जाए। एंड शेयरिंग द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। हमें उन्हें इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक देम फील दैट दिस इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देयर सक्सेस। एंड देन वी हैव टू डिजाइन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। कि भाई उनका जो लेवल है, उनके लेवल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लेवल वी हैव टू डिजाइन द क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस साइंटिफिकली डिजाइन हो तो बेटर होगा, है ना। वी हैव टू डिजाइन सम असाइनमेंट्स एंड देन चिल्ड्रन you can then teachers you can provide feedback based on criteria for success। तो आप लास्ट में क्या कर सकते हो, बच्चों को फीडबैक भी दे सकते हो। द फीडबैक कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो। आप बच्चों को इंडिविजुअली भी फीडबैक दे सकते हो कि हाँ बेटा, दिस वॉज योर प्रॉब्लम बिफोर दिस मेनी डेज एंड नाउ वी वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम एंड नाउ दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। बच्चों से फीडबैक ले भी सकते हो। टेल अस, इज द प्रॉब्लम सॉल्व, पूछ सकते हो आप, राइट। एंड पीर एंड सेल्फ असेसमेंट। हाँ, अगर आप, एक और बहुत ही अच्छा टीचिंग मेथड है यहाँ पर, पीर एंड सेल्फ असेसमेंट। सो सेल्फ असेसमेंट, यू कैन आस्क अ चाइल्ड टू डू अ सेल्फ असेसमेंट। पूछ सकते हो कि बेटा चेक योर सेल्फ, पहले ये आपको आता था, हाँ, तो क्या अब आपको ये आता है, हाँ या ना, राइट। तो बच्चा खुद चेक करेगा। पीर असेसमेंट, पीर असेसमेंट मीन्स फ्रेंड्स की आप जो है ग्रुप्स बना सकते हो एंड यू कैन आस्क द चिल्ड्रन टू चेक देमसेल्फ। हाँ, दो दो बच्चों का ग्रुप बना दिया एंड बोला कि चलो आप इसको चेक करो, आप इसको चेक करो, एंड देन so this way also we can we can do the formative assessment, and these are 5 very important principles of formative assessment, right। अब आप देख रहे होगे कि समेटिव और फॉर्मेटिव, लेकिन आप देखेंगे द वेन डायग्राम that we are going to discuss today, what is summative what is formative, है ना। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। happens at the end or the marks grades oriented, looks back on past learning, narrow range of format written exams। और फॉर्मेट असेसमेंट क्या होता है कि happens at all the time, ongoing process, ये हमेशा होता है, ये ongoing process है। diagnostic should be done and here we cannot give marks and grades। immediate feedback has to be given to the students। it has a wide range of format and here the exam pattern can be oral or written also, right। in summative assessment exam pattern should be written but there can be some oral methods also added। but what is common here, both are dual in nature। dual nature होते हैं, यहाँ पर टीचर्स को और बच्चों को दोनों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, राइट। एंड इट गिव्स फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर फीडबैक हमको दोनों का मिलता है, स्टूडेंट का भी फीडबैक मिल जाता है, टीचर्स का भी फीडबैक मिल जाता है, राइट। एंड बोथ मस्ट हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। टीचर्स को पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। एंड बोथ नीड्स टू बी प्लान, प्लान होना चाहिए भाई। विदाउट प्लानिंग कैनॉट नथिंग कैन बी डन। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड classification of the following classifying the following into formative and summative assessment। चलिए
तो ये कुछ चीजें हम लोग आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट हाउ कैन वी क्लासिफाई द फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। एक और हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और इसे हम प्रैक्टिकली क्लास में कैसे कर सकते हैं। तो आज तो हमने इस वीडियो में बस ये जाना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, है ना, और इसको कैसे किया जाता है। इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊंगा, इसको कंप्लीट करूंगा इस टॉपिक को, दिस टॉपिक इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए असेसमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।